A very good morning to you all. As we are done with our first unit, organisms and population, today we are moving ahead to the topic concept of niche, character displacement, resource partitioning, and competitive exclusion, where we will be discussing about hypervolume niche, realized niche, competition types, a little about the organisms and population that we did in our last class, quickly revising these important topics that are very helpful from competitive point of view. And for the mock tests and Google Forms to practice the questions on this, you must join Telegram group for more details and for practice. That is Ishta's Botanic on Telegram as well. Now, moving on to today's topic, before starting up with the competition that can take two forms and how it is related with our today's topic, I would like to give you a brief about what we studied in our last classes, where we talked about population interactions and we talked about competition, predation, parasitism, commensalism, amensalism, allelopathy. These type of interactions which are involved in a habitat and populations interact within themselves and play role in the community, this is known as niche. About the details of niche, we are having discussion in today's class. But before moving on to the concept of niche, we have a very important concept of competitive exclusion, for which we need to understand what competition is and how can it take two forms. कंपटीशन के बारे में व्हेन वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड कि जब दो स्पीसीज इंटरैक्ट करते हैं and they compete for the food and resources, and in that type of interaction both are negatively affected, then that is known as competition. Interaction in which both the species are negatively affected, both will have some harmful impact because of their severe competition regarding resources, habitat, जो भी उनको अवेलेबिलिटी है, फूड है, वाटर है, हैबिटेट है, रहने की जगह है, उसके रिस्पेक्ट में जो भी इंटरेक्शन होता है, दैट इज कंपटीशन. बट हाउ कैन इट टेक टू फॉर्म्स? द फर्स्ट वन इज competitive exclusion and the second one is competitive coexistence. Talking about competitive exclusion, it states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely, and the competitively inferior one will be eventually eliminated. कहने का मतलब ये है कि जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete करेंगे, then at that point of time they cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eventually eliminated. बट ये रूल जहां पे ये कहा जाता है कि दो कंपीटिटिंग स्पीसीज हमेशा साथ साथ नहीं रह सकते, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम कि चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है और दोनों साथ साथ रह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता अगर वो सेम रिसोर्सेज के लिए compete करें. क्योंकि जो competitively inferior है, मतलब जिसको प्रॉब्लम हो रही है अपने सुपीरियर वाले की वजह से, बिकॉज उनमें से एक स्पीसीज डोमिनेट करेगा, उसके पास ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी, वो फिटेस्ट होगा व्हेन वी टॉक अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो उस वजह से दूसरे वाले को हार्म होगा एंड दूसरे वाला इंफीरियर हो जाएगा, तो वो वाला इवेंचुअली टाइम बाय टाइम एलिमिनेट कर जाएगा. कौन से वाला? द वन दैट इज कम्पिटिटिवली इंफीरियर. This is the statement that is given by competitive exclusion. But now in the recent studies, this statement is not supported. Recent studies does not support such gross generalization about competition where one species is eliminated.
इनफैक्ट रीसेंट स्टडीज क्या कहती हैं, लेट्स सी. Recent studies suggest about competitive coexistence. Now, what is competitive coexistence? The species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion. Recent studies ये कहती हैं कि अगर दो टाइगर compete कर रहे हैं एक डियर को खाने के लिए, तो ये जरूरी नहीं है कि उनमें से एक टाइगर इतना ज्यादा कैपेबल हो कि वो दूसरे को इंफीरियर प्रूव कर सके या उसको एक्सक्लूड कर सके. इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि दोनों के अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स इवॉल्व हो जाएं कि वो दोनों ही वहां पे कोएग्जिस्ट करें, दोनों ही उस हैबिटेट में, उस फूड के लिए जिसके लिए वो compete कर रहे थे, उन रिसोर्सेज के लिए जिसके लिए वो compete कर रहे थे, हो सकता है उनमें ऐसे मैकेनिज्म्स आ गए कि वहां पे वो कोएग्जिस्ट कर सके रेदर देन कोई एक टाइगर एक्सक्लूड हो जाए. This is competitive coexistence, and one such mechanism is resource partitioning or sharing by choosing different times for feeding or different foraging patterns. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा मैकेनिज्म इस कम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस का क्या है, दैट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग या शेयरिंग. कैसे? फीड करने के लिए, उस खाने को खाने के लिए, उस रिसोर्स को कंज्यूम करने के लिए जिसके लिए वो compete करना चाहते हैं, वो डिफरेंट टाइम पीरियड चूज कर लें या फिर डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स यूज कर लें. So this is what we know as competitive coexistence, जो कि recent studies support करती हैं. What is supported by the recent studies? This mechanism of competitive coexistence. Okay. Now let's discuss. Example से समझते हैं what is competitive exclusion. Let's discuss one of the Gore's original experiment with ciliates. Ciliates क्या होते हैं? जो कि आपके ciliated organisms are known as ciliates. Protozoans होते हैं and ciliated cilia are hair-like structures. You must have read about this. तो ciliates के साथ Gauss ने, Gauss was a scientist. You must know this name Gauss because reason being कि आपको आता है ये जो competitive exclusion experiment है या competitive exclusion principle है, ये basically what we call it as Gauss competitive exclusion principle. तो इसको आप competitive exclusion भी लिख सकते हैं and it can also come in your exam as Gauss competitive exclusion principle. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट किया जो बहुत फेमस है, आज भी हम उसको पढ़ रहे हैं. एंड व्हाट इज दैट एक्सपेरिमेंट? सीलिएट्स लिए उन्होंने, सीलिएट्स में उन्होंने ऑर्गेनिजम्स लिए पैरामीशियम. पैरामीशियम यू नो स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म होता है पैरामीशियम, यू मस्ट नो अबाउट दिस. तो उन्होंने पैरामीशियम लिया और उसके दो स्पीशीज ले लिए. द फर्स्ट वन इज पैरामीशियम कोडेटम एंड द सेकंड वन इज पैरामीशियम ओरिलिया. उन दो क्लोजली रिलेटेड सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स को जब उन्होंने सेपरेट कल्चर में ग्रो किया, मतलब एक कल्चर अलग कल्चर प्लेट में ले लिया, एक और मतलब पैरामीशियम ओरिलिया को अलग कल्चर प्लेट में ले लिया, पैरामीशियम कोडेटम को अलग कल्चर प्लेट में ले लिया. तो जब उन्होंने उनके सेपरेट कल्चर्स में उनको ग्रो किया, देन व्हाट हैपेंड वाज टिपिकल सिग्मोइड पॉपुलेशन ग्रोथ आई. We have read about the sigmoidal growth curve. लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल की हमने बात की थी जब, तो तब हमने पढ़ा था कि सिग्मोइड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व कौन सी आती है. तो जब उन्होंने डिफरेंट कल्चर प्लेट ली, तो व्हाट हैपेंड वाज सिग्मोइड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व उन्होंने वहां पे ऑब्जर्व की. मैं आपको याद दिला दूं कि दिस टाइप ऑफ कर्व where this was the scene, ये थी सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व, कुछ ऐसी. हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है इसके बारे में, पॉपुलेशन
एट्रीब्यूट जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको अच्छे से इसके बारे में बताया था। तो सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व के बारे में हमने पढ़ा था और कुछ इस तरह की उसकी ग्रोथ कर्व आती है, सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व। ये बात यहाँ क्यों हो रही है? बिकॉज व्हेन गोस परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने कुछ इस तरह की कर्व ऑब्जर्व की when he took two ciliated organisms in separate culture plate। जब सेपरेट कल्चर प्लेट में उन्होंने पैरामीशियम ओरिलिया और पैरामीशियम कोडेटम को लिया तो सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व उनके पास आई। when both protozoans were placed in the same culture, Paramecium aurelia alone survived after 16 days because it has a more rapid growth rate and thus outcompeted or excluded P. codatum for the limited amount of food। क्या हुआ? जब दो सेपरेट कल्चर में ग्रो किया तो सिग्मोइड पॉपुलेशन ग्रोथ आई, लेकिन जब उन्होंने उसको सेम कल्चर में ले लिया तो 16 दिन के बाद कौन बच गया? सिर्फ पैरामीशियम ओरिलिया बच गया। पैरामीशियम ओरिलिया ओनली सर्वाइव्ड आफ्टर 16 डेज और उसने आउट कम्पीट कर दिया पैरामीशियम कोडेटम को। तो कहने का मतलब है कोडेटम कौन हो गया? इंफीरियर। सुपीरियर कौन हो गया? पैरामीशियम ओरिलिया। एंड दिस इज हाउ पैरामीशियम ओरिलिया competitively excluded पैरामीशियम कोडेटम, क्योंकि दोनों के सिमिलर कल्चर में ग्रो करने की वजह से उनके पास अमाउंट ऑफ फूड लिमिटेड हो गया। See what it is about. See the diagram I have drawn. Each species grown separately। जब दोनों स्पीसीज को सेपरेटली ग्रो किया तो क्या हुआ? पॉपुलेशन साइज एक तरफ y एक्सिस पे लिया है और x एक्सिस पे लिया है डेज, नंबर ऑफ डेज। तो जब उनको सेपरेटली ग्रो किया था तो पैरामीशियम ओरिलिया एंड पैरामीशियम कोडेटम, ये देखिए कहाँ ग्रो कर रहे हैं। दिस इज पैरामीशियम ओरिलिया, दिस इज पैरामीशियम कोडेटम। सेपरेट कल्चर में जब इनको लिया तो ये कुछ इस तरह से ग्रो किए, बट जब उन्होंने उनको अलग कल्चर की बजाय सेम एक ही कल्चर में एक साथ ग्रो कर लिया, देन व्हाट हैपेंड? पैरामीशियम ओरिलिया की कर्व इतना ऊपर चली गई, वाइल पैरामीशियम कोडेटम की कर्व कहाँ रह गई? नीचे। क्योंकि क्या हो गया पैरामीशियम कोडेटम? इट वाज competitively outsourced या excluded। पैरामीशियम ओरिलिया की कर्व ऊपर, पैरामीशियम कोडेटम की कर्व नीचे। व्हाट हैपेंड? ये कब हुआ? जब दोनों स्पीसीज को एक साथ ग्रो किया। जबकि जब दोनों को जब दोनों को एक साथ जब दोनों को एक साथ ग्रो किया तो कॉम्पिटिटिवली एक्सक्लूड हो गया कोडेटम। जब उनको अलग अलग ग्रो किया था तो सिग्मोइडल ग्रोथ करवा रही थी दोनों की, एक अपने तरीके से सिग्मोइड ग्रो कर रहा था, दूसरा अपने तरीके से सिग्मोइड ग्रो कर रहा था। सो देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन population of P. codatum and gradual increase in population of P. aurelia, but not to the level attained when cultured separately। कहने का मतलब क्या है कि दोनों की अपनी अपनी ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज हुआ पॉपुलेशन में जब दोनों को एक साथ ग्रो किया, तो क्योंकि वो कंपीट करने लगे फूड एंड रिसोर्सेज के साथ जो कि लिमिटेड थे, तो इस वजह से उनमें ग्रेजुअल डिक्रीज एंड इंक्रीज हो गया, लेकिन उस लेवल को वो अटेन नहीं कर पाए जो वो तब कर पा रहे थे जब उनको अलग अलग सेपरेटली कल्चर किया जा रहा था। सो व्हाट इट इज अबाउट? कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज अबाउट, it is given by Gauss, also known as Gauss principle, where complete competitor cannot exist। ये क्या कहता है कि complete competitor exist नहीं करता। there is no competitor that completely exists। अगर दो competing species coexist करते हैं कहाँ पे? एक stable homogeneous environment में, then they do so as a result of differentiation of their realized niche। हम इसके बारे में पढ़ेंगे what is this realized niche। लेकिन ये क्या कहता है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि दो कंपीटिटिंग स्पीसीज अगर कोएग्जिस्ट करते हैं किसी स्टेबल होमोजीनियस एनवायरनमेंट में, तो वह ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ देयर रियलाइज्ड नीश। मतलब एक्चुअल में जो उनकी नीश होती है, जो उनका एक्चुअल में रोल होता है, दैट इज नोन एज रियलाइज्ड नीश, उसकी वजह से ऐसा करते हैं वो कोएग्जिस्ट।
अगर लेकिन ऐसी कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुई या हैबिटेट ने उनको एक्सक्लूड कर दिया, इस तरह की डिफरेंशिएशन को, नीच डिफरेंशिएशन को एक्सक्लूड कर दिया, तो क्या होगा, वन कंपीटिटिंग स्पीसीज विल एलिमिनेट और एक्सक्लूड द अदर. दिस इज गॉस प्रिंसिपल. अब ये जो नीच डिफरेंशिएशन है, व्हाट इज इट, व्हाट इट इज, इट रेफर्स टू डिफरेंट difference among species in their physiology and behavior and concurrently in their use of resources and tolerance of conditions. क्या होता है niche differentiation? It refers to difference among species in their physiology and behavior and concurrently in their use of resources and tolerance of conditions. उनके फिजियोलॉजी, उनके बिहेवियर में जो डिफरेंस होता है दो स्पीसीज के बीच में, एंड वो किस तरह से रिसोर्सेज को यूज करते हैं, कंडीशंस को कितना टॉलरेट करते हैं, इस डिफरेंस को बोलते हैं नीश डिफरेंशिएशन. आई होप इट्स क्लियर कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, और इसके एग्जाम्पल हमने लिया गॉस ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट. The second example can be introduction of goats resulted in exclusion of Abingdon tortoise from Galapagos Islands because goats are better browsers. Galapagos Island जो कि टॉर्टोइज के लिए फेमस है, वहां पे एबिंगडन टॉर्टोइज का एक्सक्लूजन हो जाना ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ गोट्स, क्योंकि गोट्स आर बेटर ब्राउजर. वो ब्राउज करेंगी ग्रास पे, ग्रेजिंग करेंगी, तो वो बेटर ब्राउजर्स हैं, इसीलिए वो एक्सक्लूड कर देती हैं वहां पे रहने वाले एबिंगडन टॉर्टोइज को. नाउ वी हैव एन एग्जांपल 3 ऑन द रॉकी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली. ये मैंने पहले भी आपको एग्जांपल बताया था व्हेन वी टॉक्ड अबाउट कंपटीशन ड्यूरिंग आवर लेक्चर ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन, कि लार्ज एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बैरेंकल बैलेनस डोमिनेट करता है इंटरटाइडल एरिया में, जहाँ पे इंटरटाइडल मतलब इनसाइड द वाटर जहाँ टाइड्स होते हैं, वहां पे वो सुपीरियर होता है. तो वो कंपिटिटिवली सुपीरियर होने की वजह से जो स्मॉलर बेरेंकल्स होते हैं दैट आर कैथामलस, उनको उस जोन से एक्सक्लूड कर देता है. कौन है, आपको ये याद रखना है, व्हाट्स द नेम, स्मॉलर ब्रैंकल Cathameles and superior barnacle balanus. Okay. Now what is competitive coexistence? The first example for that is 5 closely related species of warbles avoid competition by changing foraging pattern. MacArthur ने एक example दिया था. MacArthur was a scientist. उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स दे अवॉइड कंपटीशन बाय चेंजिंग देयर फॉरेजिंग पैटर्न्स. हमने बात की थी कोएग्जिस्टेंस में कि कोएग्जिस्ट वो तब कर सकते हैं जब वो अपना फॉरेजिंग पैटर्न को चेंज कर लें, या जिस टाइम पे उनको रिसोर्सेज पे फीड करना है अपनी टाइमिंग को चेंज कर लें. तो एक एग्जांपल यहाँ है जो मैकआर्थर ने दिया. स्मॉलर सॉन्ग बर्ड्स के बारे में आपने सुना होगा. सॉन्ग बर्ड्स को बोलते हैं वार्बलर्स. तो 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं वार्बलर्स के. ये डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं. दे बिलोंग फ्रॉम सिल्विडे, दे बिलोंग फ्रॉम पैरुलिडे, पिकोड्रामिनिडे, सच लाइक दैट. तो ये बेसिकली स्मॉल एक्टिव इंसेक्ट ईटर्स होते हैं एंड दे आर फाउंड इन गार्डन वुडलैंड्स एंड मार्शेस. मार्शी लैंड में, गार्डन्स में ऐसे एरियाज में मिलते हैं. सॉन्ग बर्ड्स इनको बोलते हैं एंड दे आर वेरी स्मॉल इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स. तो उनके बारे में मैक आर्थर ने बात की कि ये अपने फॉरेजिंग पैटर्न को चेंज कर लेते हैं एंड दस दे कॉम्पिटिटिवली कोएग्जिस्ट. फॉरेजिंग का मतलब क्या होता है, फूड रिसोर्सेज के लिए जो सर्च होती है किसी एनिमल की, दैट इज नोन एज फॉरेजिंग. तो इस को जो उनका फॉरेजिंग पैटर्न है, फूड रिसोर्सेज के सर्च का जो तरीका है उनका, अगर वो उस पैटर्न को चेंज कर लेते हैं, ऐसा बिहेवियर जिससे वो अपने जिन ऑर्गेनिजम्स की सर्च में हैं उनको एक्वायर करने के लिए, या उनके पास जो अवेलेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए, अगर वो
उस रिसोर्स की कंजम्पशन और लोकेशन सबको मिला के अपने बिहेवियर और पैटर्न को चेंज कर लेते हैं, देन दैट इज नोन एज चेंजिंग फोरेजिंग पैटर्न. This is first example. Now the second example is by Darwin, जिन्होंने गैलापागोस आइलैंड में 14 species of finches की बात की थी. When you will move on to the higher classes, you will read about this example in detail. Finches की बात हो रही थी, Darwinian finches भी बोला जाता है इनको. गैलापागोस आइलैंड्स में वो भी coexist करते हैं due to development of different feeding habits. From the foregoing discussion, अब तक जो हमने डिस्कशन की इससे ये बात क्लियर है कि कंपटीशन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है सेम रिसोर्सेज के लिए जो कि लिमिटेड हो, लेकिन टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है. और इसका बेस्ट एग्जांपल है जो टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में कंपटीशन की बात हो रही है, इसका बेस्ट एग्जांपल है साउथ अमेरिकन लेक्स में, where visiting flamingos and resident fishes compete for their common food, that is zooplankton in the lake. Fishes already रहती हैं साउथ अमेरिकन लेक्स में, फ्लैमिंगोज वहां पे विजिट करते हैं आके, तो उनके बीच का जो कंपटीशन होता है दैट इज the example of competitive coexistence but between totally unrelated species, क्योंकि वो compete करते हैं for their common food, zooplanktons in the lake. What are zooplanktons? जिनके ऊपर animals feed करते हैं for their food, तो उसके लिए वो वहां पे compete करते हैं. Okay, one more topic we'll do, that is protocooperation. It is an association between individuals of two species, each of which is benefited by the presence of other but can live equally well without association. क्या होता है प्रोटोकॉपरेशन? दो स्पीसीज के बीच में, दो स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में एसोसिएशन, जहां पे दोनों को बेनिफिट मिलता है एक दूसरे के साथ रहने से, लेकिन अगर वो एसोसिएशन नहीं होगी तब भी वो दोनों खुशी खुशी आराम से रह पाएंगे. बट क्योंकि दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, सो दैट इज व्हाई दे कम अप इन सच काइंड ऑफ एसोसिएशन, दैट इज नोन एज प्रोटोकॉपरेशन. कहने का मतलब आप समझें, देयर आर टू थिंग्स, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव. तो बेसिकली फैकल्टेटिव एसोसिएशन इनके बीच में है, दिस इज नॉट मैंडेटरी. मैंडेटरी एसोसिएशन नहीं है, इट इज फैकल्टेटिव कि अगर मिल जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं मिलेगा तो भी कोई हार्म नहीं है. फर्स्ट एग्जांपल इज बिटवीन रेड बिल्ड ऑक्सपेकर एंड येलो बिल्ड ऑक्सपेकर, जो कि ब्लैक राइनोसेरोस के बैक पे बैठते हैं, फीड करते हैं उसमें राइनोसेरस की बॉडी पे जो टिक्स होती हैं उन पे. एंड दीज बर्ड्स आल्सो वार्न द राइनोसेरोस ऑफ अप्रोचिंग डेंजर. तो दोनों को बेनिफिट होता है राइनोसेरोस को इसलिए क्योंकि ये बर्ड्स उनको बता देती हैं जब कोई अप्रोचिंग, कोई डेंजर उनकी तरफ आ रहा हो. तो ऑन द अदर हैंड वो राइनोसेरोस पे अपने फूड के लिए फीड करती हैं, दैट इज टिक्स ऑन द बॉडी ऑफ राइनोसेरोस. The second example is about the crocodile bird, a plover. Crocodile bird को बोलते हैं plover, जो कि crocodile के माउथ में एंटर करती है to feed on parasitic leeches. Leeches are present, annelids होते हैं ये, parasitic leeches are present in the mouth of crocodile. उन पे feed करने के लिए the plover, crocodile bird enters in the mouth. तो बर्ड को अपना खाना मिल जाता है, that are parasitic leeches inside the crocodile, and क्रोकोडाइल को छुटकारा मिल जाता है उन ब्लड सकिंग पैरासाइट्स से, क्योंकि वो कौन खा जाता है? क्रोकोडाइल बर्ड्स. तो बोथ आर बेनिफिटेड. द नेक्स्ट एग्जांपल इज अबाउट सी एनीमोन दैट इज अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ हर्मिट क्रैब. कैसे हर्मिट क्रैब को सी एनीमोन बचाता है फ्रॉम द एनिमीज विद इट्स निमेटोसिस. निमेटोसिस उस पे प्रेजेंट होते हैं सी एनीमोन पे, तो वो हर्मिट क्रैब को उससे बचाता है उसके एनिमीज से. एंड इन रिटर्न एनीमोन को क्या बेनिफिट मिलता है? इट रिसीव्स पीसेस ऑफ फूड ड्रॉप बाय क्रैब. जो क्रैब कुछ छोटे छोटे पीसेस फूड के ड्रॉप कर देता है खुद खाते हुए, उनको सी एनीमोन कैरी कर लेते हैं, उनसे वो खुद भी खाना खा लेते हैं, एंड इट इज कैरीड टू न्यू प्लेसेस बाय इट. दिस इज हाउ द बोथ द पार्टनर्स आर get benefited. So this was about proto cooperation, and by this we are done with our two topics, that is proto cooperation and competitive exclusion, where we studied about competitive coexistence, exclusion, and few examples regarding this.
And in next class, we will be discussing about niche and the complete concept of niche. By then, thank you for watching Ishita's Botanic. Keep sharing, liking, and following my channel. That is completely free. The subscription is completely free. You just have to press the bell icon and get the benefit. We are done with our units, plant physiology and ecology and enzymes. And by our next videos, we will be covering our more topics super soon. Keep watching the videos, keep learning, asking your doubts, and keep sharing and subscribing the channel. Thank you so much.